So today we will be discussing about the glycogen metabolism. What is the glycogen? Glycogen क्या होता है? It is a storage form of glucose and it is stored in basically कहाँ पे stored होता है glycogen? Liver and as well as in the muscles. So it is a polymer of glucose and the branching that is present is alpha 1,4 linkage for the linear extension and alpha 1,6 linkage for the branching point. So the requirement of glycogen, it is a stored form of carbohydrate and the liver glycogen is converted into glucose in the case of fasting condition, and in muscle it provides the ATP. So as we take the food, the glycogen level increases, and as the time passes the glycogen level decreases because it converted into the glucose and provide energy to the cells. So basically it is present more in the liver as compared to the muscle. And after 5 hours of eating the food, the glucose level fall down, and after 5 hours of intake of the food, the glycogen metabolism start and it ends up to 18 hours. 18 hours की fasting के बाद आपका fat metabolism start हो जाता है to provide the energy to the body. So the glycogen only provides up to the 18 hour of the fasting. Then in the muscle glycogen, it provides energy for the muscle contraction, and all the enzymes of glycogen is present in the cytoplasm. So this is the general metabolism of glycogen. The glucose is converted into the glycogen and this process is known as glycogenesis, and the glycogen breakdown into glucose, the process is known as glycogenolysis. Lysis means breakdown. So glycogen acts under the influence of insulin because it is a hypoglycemic hormone, so it converts the glucose into the glycogen, and the hyperglycemic hormones are glucagon and epinephrine. It converts the glycogen into the glucose and maintain the glucose level in the body. So this is the phase of glucose 6-phosphate. We have already discussed this in the previous lecture. So glycogenolysis and glycogenesis. The glycogenolysis, breakdown of glycogen into the glucose, and glycogenesis is formation of excess of glucose into the glycogen. So first we discuss about the glycogenolysis. So the main enzyme of this cycle is glycogen phosphorylase because it breaks the alpha 1,4 glycosidic bond and release glucose 1-phosphate, and the coenzyme for this is the pyridoxine pyrophosphate. So the vitamin that is need in this reaction is vitamin B6. So pyridoxine जो होता है वो क्या carbohydrate metabolism में involve होता है because it can use in the carbohydrate metabolism reaction enzyme. So this glycogen phosphorylase converts the glucose into glucose 1-phosphate, and the glycogen contains less of the glucose. Then the phosphorylase only acts on alpha 1,4 linkage. So it only acts up to the 4 bond. सिर्फ 4 बॉन्ड पर ही सिर्फ 4 बॉन्ड को ही ब्रेक कर सकता है. तो उसके बाद में जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं लिमिट ब्रांच. ठीक है. देन द सेकेंड एंजाइम दैट आर यूज इन द ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज ट्रांसफरेज. वन इज द ट्रांसफरेज एंड देन इज द ब्रांचिंग एंजाइम. ट्रांसफरेज 3 ग्लूकोज रेजिड्यू को रिमूव करता है एंड लीनियर स्ट्रक्चर पे आके अटैच कर देता है. सो दैट इज द एक्शन ऑफ द transferase enzyme. It transfers the 3 glucose residue into the linear chain and it acts as the 1,6 linkage. Then फिर आपका आता है phosphoglucosamutase जो कि ग्लूकोज 1-phosphate में ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट होता है. Then
विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेटेज ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होता है, इसलिए ही सिर्फ लिवर जो है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फॉर्म करता है। मसल में एंजाइम एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई जो प्रॉपर जो है आपका ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म वो लिवर में नहीं होता, वो सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक ही होता है, उसके बाद वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द मसल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द glycogen metabolism properly to produce glucose because it is deficient in glucose 6 phosphatase enzyme. तो glucose 6 phosphatase ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपकी ओवरऑल साइकिल है। फर्स्ट आपकी जो आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज था वो अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़ के आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। देन उसके बाद ट्रांसफरेज जो है वो 3 कार्बन यूनिट को ब्रांच चेन से लीनियर चेंज में लाएगा। देन डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो अल्फा 1,6 लिंकेज एक को रिलीज करके एक ग्लूकोज की यूनिट रिलीज करेगा। देन फिर बाद में फॉस्फोराइलेज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। ठीक है, सो दिस इज द होल स्टेप ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। ठीक है, डायग्रामेटिकली आगे समझ में। देन इन जनरल कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन यदि ग्लाइकोलिसिस में मसल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है जब 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। इन जनरल ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होते। देन ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए जो मेन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है वो होता है यूडीपी ग्लूकोज, मींस यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, जो कि प्रिकर्सर होता है फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अटैच करेगा यूरिडीन से एंड यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। देन ग्लाइकोजेनिन ये एक एंजाइम होता है जो कैटलाइज करता है अटैचमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू द वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का एडिशन ऐड करता है। और कौन सा लिंकेज होता है, ओ टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2 टाइप के लिंकेज होते हैं, एक ओ टाइप के एंड एक एन टाइप के। ओ टाइप के जो लिंकेज होते हैं वो आपके टायरोसिन से आते हैं जो कि प्रोटीन होता है, और एन टाइप के जो लिंकेज होते हैं वो एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट से आते हैं, क्योंकि टायरोसिन जो है वो OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सो ग्लाइकोजेनिन जो होता है वो कैटलाइज करता है यूडीपी ग्लूकोज का अटैचमेंट टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज विद अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई ग्लाइकोजेनिन जो होता है वो आपका ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन अब आपका यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अटैच हो जाता है। देन ब्रांचिंग, अभी तो 1,4 लिंकेज हो रहा था, उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, 6 कार्बन एटम को अटैच कर देता है, किससे, लीनियर चेन से, विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1,6 लिंकेज। अल्फा 1,6 लिंकेज से ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो अल्फा 1,6 लिंकेज बनाता है विद द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। सो दिस इज द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यूडीपी ग्लूकोज आएगा, देन ग्लाइकोजेनिन जो है एंजाइम जो कि कैटलाइज द इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस ग्लूकोज थ्रू अल्फा 1,4 लिंकेज। देन ब्रांचिंग एंजाइम से 6 कार्बन यूनिट अटैच हो गई। देन आपका रिपीटेड यूनिट ऑफ ब्रांचिंग से आपका ग्लाइकोजन बन गया। ठीक है, तो आपको उसमें सिर्फ 2 ही एंजाइम याद रखने, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंड देन ब्रांचिंग। देन आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, एज टोल्ड अर्लियर ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो रेगुलेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इट रेगुलेट्स द ग्लाइकोजन कैटाबॉलिज्म। सो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का लेवल इंक्रीज होगा, देन ग्लाइकोजन सिंथेसिस एक्टिवेट होगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज।
सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। जैसे ग्लूकोज होगा तो सिंथेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी। सो दीज आर इंटर रिलेटेड एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंड सिंथेज। जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होता है एंड सिंथेज जो है वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होता है। सो जो फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन होते हैं इसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द वेरियस एंजाइम। देन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के लिए साइक्लिक एएमपी कैस्केड इज नेसेसरी। ठीक है, तो क्योंकि नाम फॉस्फोराइलेज है तो इससे याद हो जाएगा कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट रहता है और ग्लाइकोजन जो सिंथेज है वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट रहता है। एंड जो प्रोटीन काइनेज होता है वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन, और जो प्रोटीन फॉस्फेटेज होता है वो क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन। अब जो साइक्लिक एएमपी कैस्केड कैसे एक्टिवेट होता है, जैसे ही हार्मोन का सिक्रीशन जैसे ग्लूकेगॉन या एपिनेफ्रिन वो आपकी मेम्ब्रेन बाइंड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है जो कि प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज के दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो आर और एक सी। तो यदि ये बाइंड रहते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज कैटलिस्ट साइट से बाइंड करता है तो रिसेप्टर साइट फ्री हो जाती है और ये फॉस्फोराइलेशन कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हुआ उसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, वो क्या कराता है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ उसने दोनों एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करा दिया। तो यदि ग्लाइकोजन का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फॉस्फोराइलेशन का क्या काम है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ठीक है, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि उसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो वो इनएक्टिव हो रहा है। ठीक है, सिंथेज जो है वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव है, तो यदि अपन उसका फॉस्फोराइलेशन करा देंगे यानी एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें अटैच कर देंगे तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेज यदि इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, और यदि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाएगा तो यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हार्मोनल रेगुलेशन होता है। ठीक है, किस तरीके से आपका हार्मोन जो है किसी भी एंजाइम या साइकिल को अफेक्ट करता है। यदि वो रेगुलेटिंग साइकिल को एक्टिवेट करेगा, यदि आपका एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी साइकिल भी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन जो है एंजाइम को इफेक्ट करके आपकी साइकिल को एनहांस करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, एडिनाइल जो जैसे ही आपका हार्मोन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होगा क्योंकि वो एडिनाइल साइक्लेज से बाइंड कर रहा है। अब साइक्लिक एएमपी यदि बढ़ जाएगा तो वो एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज जो होता है वो क्या कराता है, फॉस्फोराइलेशन। तो जैसे ही वो फॉस्फोराइलेशन कराएगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो यदि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो रहा है तो इसका मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यदि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ रहा है तो यानी क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन करता है। तो वो क्या करेगा, यदि डीफॉस्फोराइलेशन करेगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या हो जाएगा, इनहिबिट, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाएगा। तो आपकी जो ब्रेकडाउन है वो इनहिबिट हो जाएगा ग्लाइकोजन का, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लिवर में अलग एक्ट करता है, मसल में अलग एक्ट करता है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो एक्टिवेट होता है किससे, फॉस्फोराइलेशन से, एंड इट इज इनहिबिटेड बाय द एटीपी एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। क्यों, यदि ग्लूकोज के वैल्यू बढ़ जाएगा तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनहिबिट हो जाएगा।
क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में शुगर है तो हमको और शुगर की नीड नहीं है। तो इसलिए जो यदि आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ शुगर है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो हमारा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जरूरी नीड नहीं है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने की। तो इसलिए यदि एनर्जी है और ग्लूकोज है हमारी बॉडी में तो फॉस्फोराइलेज क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसी तरीके से मसल में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का क्या काम है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो यदि आपका एटीपी यानी एनर्जी एडिक्वेट है तो आपका ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। और जो मसल में है वो ग्लाइकोजन जिनोलाइसिस कौन रेगुलेट करता है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज अ स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ हार्मोन, ये सिंपैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सो एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकेगॉन का कोई रोल नहीं है मसल में, क्योंकि मसल में रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ एनर्जी की है, शुगर की नहीं है। तो दैट्स व्हाई ग्लूकेगॉन जो है वो आपका मसल पे एक्ट नहीं करता, सिर्फ एपिनेफ्रिन मसल पे एक्ट करता है। देन ग्लाइकोजन सिंथेटेज, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फॉस्फोराइलेज। सो यदि आपकी इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है बाय फेवरिंग द डीफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये फॉस्फेटेज एंजाइम रिलीज करता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को इनहिबिट कर देता है। सो दैट्स व्हाई इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन आर अपोजिट टू ईच अदर। एंड एपिनेफ्रिन का स्टिमुलेटरी एक्शन होता है ऑन ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑन बोथ लिवर एंड द मसल। एपिनेफ्रिन सिर्फ स्टिमुलेटरी, क्योंकि एपिनेफ्रिन जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना। देन ये ऑलरेडी डिस्कस था, इसका सिंपल फॉर्म है एडिनाइल साइक्लेज के कारण साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेज को स्टिमुलेट कर रहा है एंड सिंथेज को इनहिबिट कर रहा है, जो कि रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को, जो कि लिवर में ग्लूकोज बना रहा है, मसल में क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आपकी एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन जो है हार्मोन जो है आपका लिवर एंड मसल दोनों पे एक्ट करता है, लेकिन ग्लूकेगॉन जो है वो सिर्फ लिवर पे एक्ट करता है, क्योंकि ग्लूकेगॉन जो है वो सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से अटैच्ड है, वो सिर्फ ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। एंड एपिनेफ्रिन जो है वो एटीपी से अटैच है, कि मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी में। इसका काम क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज करना। तो लिवर एज वेल एज मसल दोनों में रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए जो एपिनेफ्रिन का एक्शन लिवर एंड मसल दोनों पे है। देन glucagon and epinephrine, it inhibit the glycogen synthase, is activate glycogen phosphorylase and it increase glycogen catabolism and increases the blood glucose। and insulin क्या कर रहा है, phosphorylase को inhibit कर रहा है and synthase को activate कर रहा है। तो ये glycogen का synthesis increase कर रहा है and blood glucose का level decrease कर रहा है। Then this is the regulation in a tabular form। कैल्शियम जो होता है that is requirement in muscle contraction। कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, इसलिए ये सिर्फ फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर रहा है। Then this is a important, वो आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इट इज इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द पीजी एग्जाम ऑल्सो। इसमें से कोई भी आपका डिजीज के साथ आपको पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वॉन क्रिक डिजीज। इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब यदि ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इट मींस आपका क्या है, ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होगा। सो इसमें क्या होगा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया मींस ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। लेकिन यदि हम एड्रेनलिन भी देंगे, एड्रेनलिन का क्या काम है, इट इज अ एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो है वो एपिनेफ्रिन है। ठीक है, तो यदि अपन एपिनेफ्रिन देंगे तो भी क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम ब्लड शुगर फॉर्म कर रहा है, यदि फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, यदि ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज ही नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा।
सो दैट्स वाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं ब्रेक हो रहा है ग्लाइकोजन से, ठीक है। सो इसका एग्जाम मतलब ये है कि आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा है जब आपने पेशेंट को एपिनेफ्रिन दे दिया तो भी। देन क्योंकि अब ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा, देन यदि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में नहीं जाएगा देन वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस में, क्योंकि पायरुवेट से क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, देन एसिटाइल कोएंजाइम से आपका फैटी एसिड सिंथेसिस, और यदि आपका फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ जाएगा देन फिर आपका कीटोन बॉडीज का भी सिंथेसिस बढ़ जाएगा। सो हाइपरलिपिडेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, पायरुवेट से क्या बन जाएगा, लैक्टेट, ठीक है। तो इसलिए हाइपरलिपिडेमिया, लैक्टिक एसिडोसिस एंड कीटोसिस, एंड जो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो लिवर में स्टोर्ड हो जाएगा, जिसके कारण लिवर एनलार्ज हो जाएंगे, लिवर के साथ हिपेटोसाइट्स एंड लेड्स टू द सिरोसिस। देन इसका जो है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा तो चाइल्ड कैन डाई इन अर्ली एज, एंड ट्रीटमेंट इसका क्या है, मल्टीपल शॉर्ट डाइट देंगे इन अ शॉर्ट इंटरवल ताकि ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। देन दिस इज द whole the glycogen story disease, Vaughan Green, then Cories, Pompey, Anderson, McArdle, Hers and Torres according to the various enzymes. Then this is how the glucose level is maintained in a fasting state. First जो है आपका 18 आवर्स तक आपका ग्लाइकोजन, देन उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्ट करता है, देन फिर आपका फैट मेटाबॉलिज्म, एंड लास्ट में जो होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देन ये आपको इतनी बार बता ही दिया है कि यदि स्टार्व कंडीशन होगी तो क्या होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, और यदि फेट स्टेट होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेसाइज होगा। दैट्स ऑल।